ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि जस्ट बेसिकली व्हेन वी टॉक अबाउट द क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, so there is a splitting of d orbital. So there are the 5 d orbital which is present in a d subshell, dxy, dyz, dzx, d square minus y square and d z square. Okay, so initially before interacting with the ligand, metal interaction with the ligand, so before interaction, so all 5 d orbitals which are in a degenerate energy level, so degeneracy maintain there. Degeneracy means what? Same energy, all orbitals in a same energy level. Once the ligand interact with the metal, so what will happen? So there is a electronic repulsion comes in picture. Electronic repulsion in the sense metal के d orbital में electrons present होते हैं और ligand which is pointed toward the metal by negative charge, we call metal is a positive charge species, तो negative charge ligand उसके ऊपर का negative charge means electron and electron present in the d orbitals of the metal, there is a repulsion experience. So जो repulsion जो होता है basically it is not a symmetrical repulsion. When we see the orbital orientation or position of the orbital, so we know that some orbital which is present in between the axis, some orbital present along the axis, ये देखा हम लोगों ने. सो और जब ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री की बात करते हैं हम लोग, तो ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में जो लिगैंड जब मेटल की तरफ आता है तो बेसिकली वो अलोंग द एक्सिस आता है. तो अलोंग द एक्सिस लिगैंड आने की वजह से जो ऑर्बिटल अलोंग द एक्सिस प्रेजेंट हो गए उसमें रिपल्शन ज्यादा मिलेगा और जो इन बिटवीन द एक्सिस प्रेजेंट हो गए उसमें कम मिलेगा. सो दैट्स व्हाई दिस इज अनइक्वल रिपल्शन और सिमेट्रिकल रिपल्शन. सो dx square minus y square and dz square, this orbital present along the axis experience more repulsion. Due to the more repulsion, energy of that orbital increases, shift to the higher energy, so degeneracy get lost there. So means same energy जो orbital वो disturbance हो गया, so d square minus y square और dz square orbital high energy पे चले जाएंगे ज्यादा repulsion experience करने से. और for maintaining the barrier center energy, law of conservation of energy, the orbital dxy, dyz, dzx उतने ही low energy पे चले जाएंगे. Okay, so the system added the energy due to the repulsion that is taken by the lowering the energy of dxy, dyz and dzx. तो zero energy की बात करते हैं हम लोग, तो उसके ऊपर ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया. बट यू नो दैट एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होती है. तो ये एक्स्ट्रा एनर्जी जो सिस्टम में लग रही है बेसिकली रिपल्शन के वजह से, जो बड़ा एनर्जी उसको काउंटर बैलेंस करने के लिए dxy, dyz और dzx ऑर्बिटल लोअर एनर्जी. सो दैट इज अ स्प्लिटिंग ऑफ d ऑर्बिटल initially which is before interacting with the metal ligand, which is in the degenerate energy level. जो मैंने बताया था आप लोगों को, ये degeneracy है. थोड़ा सा जब लिगैंड मेटल की तरफ आना शुरू हो जाते हैं तो रिपल्शन सभी ऑर्बिटल इक्वली थोड़ा बहुत रिपल्शन करना स्टार्ट कर देते हैं. तो सभी एनर्जी सभी ऑर्बिटल के रिपल्शन की वजह से एनर्जी लिफ्ट हो जाएंगी इक्वली. ओके, बट व्हेन लिगैंड कम क्लोज टू द मेटल, so at that time dx square minus y square and dz square experience more repulsion and dxy, dyz or dzx experience less repulsion. So that is a splitting due to the unequal repulsion. So we have splitting of the orbital, that's called as a crystal field splitting बोलते हैं हम लोग इसको. और the energy gap, अब यहाँ पे हम लोग आगे की चीजें पढ़ेंगे. यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? Yes, sir. Yes. ओके, तो हम लोग आगे की चीजें पढ़ने वाले हैं जो डायग्राम में हम लोग को काम में आएगी. Just going to erase it. ओके, ये जो टोटल एनर्जी जो गैप है, ये जो टोटल एनर्जी जो गैप है, दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ओके, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी उसको हम लोग सिंबल से दिखाते हैं डेल्टा. ओके, सो दैट इज कॉल्ड एज ए डेल्टा. वो मतलब क्या है? क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, याद रखना है, ठीक है? इट इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी. ओके,
इसी को डेल्टा ओ को हम लोग 10 DQ बोलते। सो दैट इज अ क्वांटम ऑफ, यू नो दैट एनर्जी हम लोग बंडल ऑफ क्वांटम पैकेट्स में मेजर करते हैं। सो दिस इज द मैथमेटिकल टर्म जो 10 DQ हम लोगों ने वहां पे दिया है। सो दैट इज कॉल्ड एज ए विच इज इक्वल टू डेल्टा ओ। एक तो आप डेल्टा ओ लिख सकते हो या तो आप लोग 10 DQ लिख सकते हो, ठीक है। दिस इज द मैथमेटिकल और ग्रुप थ्योरी टर्म है जो आप लोगों को आगे भी और क्लियर हो जाएंगे। क्यू मींस दैट इज कॉल्ड एज ए चार्ज विच इज प्रेजेंट ऑन द, ये इलेक्ट्रॉन के रिपल्शन की वजह से हो रहा है। और डी का दैट इज कॉल्ड 10 होता है। सो 10 DQ की बात करते हैं हम लोग, तो ये स्पेसिफिक एनर्जी गैप है, नॉट अ यूनिट, इट इज नॉट अ यूनिट, इट इज अ एनर्जी गैप। जैसे डेल्टा वो हम लोगों ने सिंबल दिया, वैसे भी उसको हम लोग 10 DQ भी बोल सकते हैं। सो जो स्प्लिट हुए हैं ऑर्बिटल, तो उनके बीच में जो एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप को हम लोगों ने सिंबल दिया है डेल्टा हो या तो 10 DQ, ओके। जो बैरे सेंटर की बात करते हैं, जब ऑर्बिटल एक पर्टिकुलर लेवल पे प्रेजेंट है, तो कुछ ऑर्बिटल आप लोग के हाई एनर्जी पे चले गए, तो एडिशन ऑफ टोटल एनर्जी ऑफ 0.6 डेल्टा हो, ऐसा बोलते हैं, राइट फ्रॉम। क्यों बोलते हैं मैं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है। यहां से सिस्टम हाई एनर्जी पे कैसे जाएंगी, जब उसमें एनर्जी ऐड होगी, ठीक है। और 3 ऑर्बिटल आप लोग के लोअर एनर्जी पे चले गए, तो जो लोअर डाउन जो एनर्जी बेटा आवाज येत आहे का रे माझा? Yes, sir. हेलो। Yes, sir. एक्चुअली इंटरनेट प्रॉब्लम चल रहा है, थोड़ा सा वेट करो। मोबाइल से कनेक्ट किया मैंने, अभी इसको मोबाइल से कनेक्ट करके देखते हैं। पूर्ण गेलं ना? हाँ, ओके 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 ओके। सागर सर, सागर सर तिकडे आहे का बघून घ्या एक वेळ। आज बहुत सारी चीजें हम लोग क्लियर करने वाले थे, इस डायग्राम में करेंगे, जस्ट वेट करो थोड़ा सा। बहुत इम्पोर्टेंट डिस्कशन है आज का भी, ठीक है। पूर्णच डाउन झालं ना? हाँ ठीक है, मैं इससे करके देखता हूँ।
आवाज का मजा था। Yes. ओके ठीक है, आलं पूर्ण। एक मिनिट। स्क्रीन दिख रही क्या? No, sir. ठीक है, नवीन फर्निचर नाही म्हणत. नाही म्हटलं, दिलंय नाही, दिलंय नाही ना, नाही. ओके, आता येता क्या आवाज? यस सर. स्क्रीन दिख रहा है अभी? Yes. Yes, ओके sir. फाइन, ठीक है, आ गया कनेक्टिविटी फिर से। ओके, तो हम लोग बात कर रहे थे बेसिकली कि जो टर्म्स जो है जो ऊपर में जो लिफ्ट हो गई, समझ लो कि रिपल्शन की वजह से सिस्टम में एनर्जी ऐड हो गई है, सो दैट मच 0.6 नंबर से हम लोग लिखते हैं। क्यों लिखते हैं बताऊंगा आप लोगों को। और जो नीचे जो एनर्जी लोअर डाउन हो गई सिस्टम से, सो माइनस 0.4 से लिखते हैं। तो वो एक्चुअली कैसे किया गया, वो कैसा है बताता हूँ कि नीचे है आप लोगों के 3 ऑर्बिटल। सो ये टर्म 2/5, टोटल 5 ऑर्बिटल है, सो मल्टीप्लाई बाय 3 ऑर्बिटल्स। ओके, जो टर्म है 2/5 से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। जब 3 मल्टीप्लाई बाय 2/5 करते हो, आवाज क्लियर है मजा? यस Yes, सर. Yes, हाँ। sir. तो ध्यान दो यहाँ पे मैं क्या बताने वाला हूँ आप लोगों को, ठीक है? हाँ, तो ये टर्म हम लोग 3 ऑर्बिटल से 2/5 को मल्टीप्लाई जब करते हैं तो इसका होता है जब जब वैल्यू जब आती है हम लोगों की, सो बेसिकली ये 2/5 मतलब 0.4 है। ओके, 0.4 है, और 0.4 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। सिमिलरली 0.6 है, होता है, और 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 भी इज इक्वल टू 1.2 होता है। तो 1.2 प्लस और 1.2 माइनस इज इक्वल टू 0। तो टोटल एनर्जी जो है सिस्टम की ये 0 से लिफ्ट हो गई थी 0.6 वैल्यू से, एंड that much counterbalanced by lowering the energy of the orbital dxy dyz और dzx। जो टर्म जो है 0.4, 0.4 को 3 ऑर्बिटल से टोटल मल्टीप्लाई करते हैं तो 1.2 वैल्यू आती है, तो माइनस 1.2। और जो टर्म है 0.6 यहाँ पे लिखा है, उसको हम लोग जो ऑर्बिटल है वो कितने ऑर्बिटल लिफ्ट हो गए, 2 ऑर्बिटल लिफ्ट हो गए हाई एनर्जी पे, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0.6 मल्टीप्लाई बाय 2 1.2, तो 1.2 प्लस और माइनस 1.2 टोटल 0 एनर्जी। तो ऐड होके सिस्टम ने फिर से उसको लोअर डाउन कर लिया, मतलब टोटल जो डी स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल इज देयर, बट एनर्जी कैसा होता है कि सर ये वो ऑर्बिटल ज्यादा एनर्जी पे चले गए, कुछ ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे चले गए, तो सिस्टम की एनर्जी कहाँ पे थी, ऐसा नहीं है। सिस्टम टोटल एनर्जी मैनेज करती है, जितना ऊपर में ऑर्बिटल लिफ्ट हो गए हैं, जितनी एनर्जी सिस्टम की बढ़ा दी ऑर्बिटल ने, उतनी एनर्जी नीचे ऑर्बिटल जाके सिस्टम से निकाल दी है बाहर। तो टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, देयर इज अ कंजर्वेशन ऑफ द एनर्जी ऑफ द टोटल सिस्टम। ओके, सो दिस इज सिंपली द मैथमेटिकल टर्म व्हाई देयर इज अ 0.6। बहुत सारे लोगों को पता नहीं रहता कि ऊपर 0.6 की वैल्यू लिखी है, नीचे 0.4 वैल्यू क्यों लिखी है, क्योंकि हम लोग 5 ऑर्बिटल की बात करते हैं, 5 ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग हो गया है, तो 2 ऑर्बिटल से एनर्जी लिफ्ट होना ऊपर में, जो नीचे काउंटर बैलेंस कर रहे 3 ऑर्बिटल से एनर्जी
होगा, एक टर्म है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2 से हम लोग ऊपर के ऊपर 2 ही ऑर्बिटल है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, और नीचे 3 ऑर्बिटल है तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 1.2 प्लस, और 3 मल्टीप्लाई बाय 0.4 1.2 माइनस, तो टोटल हो गया 0। तो ये वैल्यू क्यों लिखी समझ में आ गया ना आप लोगों को भी, 0.4 और 0.6। हेलो, Yes, sir. ओके। सो एक एक टर्म देख रहे हैं हम लोग। ऊपर के जो ऑर्बिटल है डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, उसको हम लोग ईजी ऑर्बिटल बोलते हैं, और नीचे के ऑर्बिटल जो है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, इसको हम लोग T2G बोलते हैं। तो यहाँ पे लिख लो अपने कॉपी में, देखो T2G ऑर्बिटल जो है उसको हम कौन से ऑर्बिटल है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, दिस इज कॉल्ड एज ए ट्रिपली डीजेनरेट। डीजेनरेसी मतलब क्या होता है, सेम एनर्जी। तो कितने हैं, 3 ऑर्बिटल सेम एनर्जी पे है, और ऊपर के ऑर्बिटल को हम लोग ईजी बोलते हैं। उसमें आते हैं डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ऑर्बिटल, उसको हम लोग बोलते हैं डबली, मतलब 2 डबली डीजेनरेट। हाँ, तब मैं एक चीज पूछने वाला हूँ, वो टी और ई तो लैटिन वर्ड है, ट्रिपली का टी से ई से डबली का स्टार्ट होता है, तो दैट इज अ T2 एंड ई टर्म देयर। बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ए, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ ए जी? जी लगाना क्यों है? क्योंकि यही 2 चीजें हम लोग टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में यूज करेंगे, बट विदाउट अ जी। वहां पे सिर्फ T2 और ई लिखा जाता है, और डायग्राम भी थोड़ी अलग होती है, वो बाद में पढ़ाऊंगा आप लोग को। बट जी का मीनिंग क्या होता है? जी मीन्स होता है जीरेट। जीरेट का मीनिंग पता है क्या किसी को, क्या होता है करके जीरेट? ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको जी सिंबल यूज करना है T2 के साथ और ई के साथ। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में आपको यूज नहीं करना होता है, वो बताऊंगा क्यों नहीं करना होता है। तो वही आप अभी के लिए बता रहा हूँ कि जी मींस होता है जीरेट। व्हाट इज द जीरेट? जीरेट मींस होता है सेंट्रोसिमेट्रिक सेंट्रोसिमेट्रिक। कोई भी कॉम्प्लेक्स अगर सेंट्रोसिमेट्रिक होता है, या तो सेंटर ऑफ सिमेट्री पास होती है, उस कॉम्प्लेक्स को हम लोग जीरेट कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। जीरेट मींस होता है सेंट्रोसिमेट्रिक और सेंटर ऑफ सिमेट्री। सेंट्रोसिमेट्रिक और सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग क्या होता है, देखो ध्यान दो। एक मेटल है, समझ लो, अभी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे थे। आवाज येत आहे क्लिअर माझा? Yes, sir. Yes, sir. इस बडबड करणार इकडे आणि तुम्हाला काय ऐकून येणार, ठीक है। देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मीनिंग बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे लिगैंड है, समझ लो H2O लिगैंड अटैच है सभी जगह पे। सेंटर ऑफ सिमेट्री मतलब कोई ऐसा एक्सिस पास करेंगे हम लोग, मॉलिक्यूल के एक साइड से एक स्पेसिस को वो मिल गया, किसको मिल गया? H2O को। वो एक्सिस आपका पास होता है सेंटर से। दिख रहा है सब लोग को मैं क्या ड्रॉ कर रहा हूँ? तो अलग इंक से ड्रॉ करता हूँ, ठीक है। एक एक्सिस पास किया मैंने, एक स्पेसिस को मिला, जैसे वाटर को मिला। सेम एक्सिस आगे आगे बढ़ा, सेंटर से आया मेटल से, और दूसरे साइड में मॉलिक्यूल के अगर सेम स्पेसिस को मिलता है क्या सेम स्पेसिस प्रेजेंट? H2O है क्या नहीं है? Yes, sir. हाँ। सो दिस इज कॉल्ड एज ए सेंटर ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री होना मतलब मॉलिक्यूल के एक साइड से सीधा एक्सिस पास करते हो, कोई स्पेसिस उसको मिलेंगी, एक्सिस सेंटर से जाके मॉलिक्यूल के दूसरे साइड में जाएगा, और दूसरे साइड में उसको सेम स्पेसिस उसी एक्सिस के ऊपर मिलती है, तो समझ लेना उस मॉलिक्यूल के अंदर क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। क्लियर है? क्लियर है क्या? Yes, sir. हाँ, तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, मैक्सिमम कॉम्प्लेक्स में 99% एक आधा होता होगा, 99% कॉम्प्लेक्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री होती है। जो जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे आप लोग ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स से, TH2 6 हो गया, COF6 हो गया, COCN6। इसीलिए सिंबल्स के साथ T2 और E सिंबल के साथ हमें वर्ड यूज करना पड़ता है G वर्ड, सॉरी सिंबल यूज करना पड़ता है G, और G का मतलब होता है जीरेट। जीरेट मतलब होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री। मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, दैट्स व्हाई वी यूज देयर द T2G एंड EG। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है। तो देखो क्या क्या चीजें देखी हम लोगों ने। डायग्राम को देखना है, डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। डायग्राम के ऊपर 5 मार्क का क्वेश्चन पूछेंगे तो डायग्राम के ऊपर ही 3 मार्क रहते हैं, और 2 मार्क आपके थ्योरी के ऊपर रहते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने नॉट डिजेनरेट ऑर्बिटल दिखाए, उसके बाद हम लोगों ने उनकी डिजेनरेसी समवॉट एनर्जी शिफ्ट की, हाई एनर्जी पे इक्वल रिपल्शन, फिर अनइक्वल रिपल्शन से हम लोगों ने कुछ ऑर्बिटल लोअर एनर्जी पे, कुछ ऑर्बिटल हायर एनर्जी पे। अब ये दोनों ऑर्बिटल के बीच में T2G सेट और EG सेट, वी कॉल्ड दिस इज कॉल्ड एज T2G सेट एंड EG सेट। व्हाट इज T2G सेट? ट्रिपली डीजेनरेट मींस 3 ऑर्बिटल एक एनर्जी लेवल पे। व्हाट इज EG सेट? डबली डीजेनरेट, 2 ऑर्बिटल एक एनर्जी पे। और ये 3 ऑर्बिटल और 2 ऑर्बिटल के बीच में जो एनर्जी गैप होती है T2G और EG, द एनर्जी गैप बिटवीन T2G और EG, उसको बोलते हैं हम लोग क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, उसको डेल्टा ओ से दिखाते हो या तो 10 ड्यू से दिखाते, ठीक है। तो आप यहाँ पे ये लिख सकते हो, ओके।
सो हम लोगों ने बैरेसेंटर मतलब जीरो से जो एनर्जी लिफ्ट हो गई वो वैल्यू दिखाई 0.6 और जो डाउन हो गई एनर्जी जीरो से उसको वैल्यू दिखाए 0.4। तो इसी से इक्वेशन बनता है क्रिस्टल फिल स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। बताता हूँ क्या होता है, तो ध्यान दो। लेकिन अब मैं जो चीज लिखने वाला हूँ, क्रिस्टल फिल स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, दिस इज नॉट अ क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। एक ही आते हैं एब्रिविएशन, CFAC फॉर क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी एंड CFAC फॉर क्रिस्टल फिल स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। तो कंफ्यूजन, CFAC जहां कहा वर्ड लिखा रहेगा, दिमाग डोक्यात फिट करायची है गोष्ट। CFAC जहां कहा पे भी वर्ड लिखा रहेगा उसको सीधा बोलना है, दिस इज कॉल्ड एज ए क्रिस्टल, लिख लो अपने कॉपी में, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी क्या लिखोगे उसको, क्रिस्टल फील्ड स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। और क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग एनर्जी का जो सिंबल होता है वो डेल्टा होता है। ये CFAC है, क्रिस्टल फिल स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। ओके, सो वी हैव टोटल, कोई कभी भी कैसा है, स्टेबिलाईजेशन की बात करते हैं, जब भी कोई हम लोग स्टेबिलाईजेशन एनर्जी की बात कर, कोई भी सिस्टम स्टेबल कब होती है, जब वो उसके अंदर की एनर्जी सिस्टम की निकल गई। तो निकल गई एनर्जी तो हाई एनर्जी से लो एनर्जी में आएगा। समझ लो 100 किलो जूल है और 50 किलो जूल एनर्जी निकल गई, तो बची कितनी, 50 किलो जूल। तो 50 किलो जूल तो ऊपर जाएगा क्या, नहीं नीचे आएगा। ओके, तो नीचे अगर कोई लोअर एनर्जी पे कोई भी सिस्टम आती हो तो स्टेबल होती है। दैट्स वाई क्रिस्टल फिल स्टेबिलाईजेशन कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी की बात करती है, स्टेबिलाईजेशन एनर्जी। तो हम लोग रिलीज एनर्जी की निगेटिव साइन यूज करते और बाकी के टर्म लिखते हैं हम लोग T2G सेट से जाएंगे 0.4 मल्टीप्लाई बाय P। ध्यान दो, और हर एक चीज स्मॉल p है। हाँ, ये सिंबल बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर के प्रॉब्लम भी सॉल्व करने हैं आप लोगों को। स्मॉल p, ओके। उसके बाद आएगा दोनों है, क्योंकि हम लोग बेसिकली जब भी कोई टोटल एनर्जी की बात करते हैं, जैसे डेल्टा ई बोला, तो डेल्टा ई क्या बोलते हैं हम लोग, बेसिकली हायर एनर्जी टू द लो एनर्जी, ऐसी बात करते हैं हम लोग, E2 माइनस E1। ओके, सो 0.4 निगेटिव साइन पहले लिख दिया, 0.4 मल्टीप्लाई क्यू माइनस 0.6 मल्टीप्लाई बाय क्यू। ये इक्वेशन याद रखो। हम लोग लोअर से जाएंगे T2G से EG सेट में, दिस इज द T2G, दिस इज द EG मल्टीप्लाई बाय डेल्टा ओ, क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग, कितना स्प्लिट हो गया वो कॉम्प्लेक्स, उसकी एनर्जी गैप कितनी है, प्लस एक सिंबल है N और P। अब ये जो सिंबल है ना लास्ट वाला N और P जो बताया, इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगा आप लोग को, ठीक है, जब हम लोग कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे। सबसे पहले इस इक्वेशन की तरफ ध्यान दो, क्रिस्टल फिल स्टेबिलाईजेशन एनर्जी, इसका मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स के अंदर डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन के वजह से वो एक्चुअली कहाँ पे जाते हैं, लोअर एनर्जी पे जाते हैं कि हायर एनर्जी पे जाते हैं, कितने लो एनर्जी पे रहते हैं, कितने हाई एनर्जी, उसके हिसाब से कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी बताना। ये CFAC की वैल्यू जितनी ज्यादा आएंगी उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स आप लोग का स्टेबल रहेगा। ओके, डेल्टा ओ म्हणजे काय असते, दोन T2G आणि EG मधली गॅप, एनर्जी गॅप। पर ये स्प्लिट होने के बाद ये एनर्जी गैप है। अब ये स्प्लिट होने के बाद अब जब इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होगी तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे प्रेजेंट रहेंगे उतनी ज्यादा CFAC की वैल्यू बढ़ते जाती है। तो ये क्रिस्टल फिल स्टेबिलाईजेशन एनर्जी क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कितना स्टेबल है। इट इज नॉट अ क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग। क्रिस्टल फिल स्प्लिटिंग जो है वो डेल्टा ओ से बताते हैं हम लोग, ठीक है। वो एनर्जी गैप भी हमें पता चल जाती कितनी है, तो ठीक है। मतलब ये जो दो ऑर्बिटल जो है, दो जो ये DXY DYZ DZX और DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर के बीच में एनर्जी जो गैप है उसको हम लोग डेल्टा ओ बोलते हैं, ठीक है। ओके, सो सर आपने ये टर्म तो लिख दिए, इसका मीनिंग क्या होता है, तो 0.4 0.6 बता दिया मैंने। P क्या होता है वो लिख लो अपनी कॉपी में, स्मॉल p नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G सेट्स। दिसत आहे ना क्लियर तुम्हाला स्क्रीनवरचं? Yes, sir. ओके, Q की वैल्यू लिखो, Q इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG सेट। EG सेट म्हणजे त्याच्यामध्ये DX स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और DZ स्क्वायर ऑर्बिटल है और T2G में DXY DYZ DZX ऑर्बिटल। ओके, ठीक है, लिख लिया इक्वेशन सब लोगों ने? Yes. तो Yes, देखो sir. सीधी सी बात है। अब मैं और थोड़ा सा इस इक्वेशन को थोड़ा सा आइडिया देता हूँ आप लोगों को। क्या होता है कि
स्टेबिलिटी की बात बता देता हूँ। डायग्राम देखो, फुल फोकस हो जाओ स्क्रीन के ऊपर, फुल फोकस रखो अपना स्क्रीन के ऊपर। लो एनर्जी में आपके ऑर्बिटल है dxy dyz और dzx। ओके, dxy dyz dzx। अब समझ लो हमारे पास 5 इलेक्ट्रॉन है और पांचों इलेक्ट्रॉन नॉर्मली हम लोग 1 2 3 4 और 5 ऐसे फिल करते हैं। तो इससे हम लोग स्टेबिलिटी की बात नहीं कर सकते कि सभी के सभी इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी लेवल पे। बट जब हम लोगों की बात आती है कि भाई ऑर्बिटल का स्प्लिटिंग होने के बाद इलेक्ट्रॉन हम लोग 3 इलेक्ट्रॉन नीचे लिख सकते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर लिख सकते हैं। तो देखो इस कॉम्प्लेक्स में 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आना और 2 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाना, तो लो एनर्जी पे ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो स्टेबिलिटी। अब समझ लो कि पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन आपके समझ लो लो एनर्जी पे चले गए, ऊपर एक भी नहीं बचा। एक कॉम्प्लेक्स में 3 नीचे और 2 ऊपर थे और एक कॉम्प्लेक्स में पांचों के पांचों नीचे थे। तो ऑब्वियसली स्टेबल कॉम्प्लेक्स कौन सा है? जहां पे ज्यादा ज्यादा मॉलिक्यूल स्पेसिस इलेक्ट्रॉन एटम लो एनर्जी पे रहते हैं वो सिस्टम ज्यादा स्टेबल रहती है। ओके, तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप लोगों के T2G सेट में रहेंगे वो कॉम्प्लेक्स सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। तो फैक्टर्स रहते हैं कि सर कब पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी पे रहेंगे और कब 3 नीचे और 2 ऊपर रह सकते हैं। तो जिस कॉम्प्लेक्स में आपके पांचों के पांचों इलेक्ट्रॉन या तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, पांचों छोड़ो, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन T2G सेट में रहे ना, वो कॉम्प्लेक्स आप लोगों का ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स रहेगा। तो उसमें क्रिस्टल फिस्ट है ऑब्वियसली। ज्यादा इलेक्ट्रॉन अगर T2G सेट में आ गए आप लोगों के तो P की वैल्यू बढ़ेंगी। ये जो P है, P की वैल्यू बढ़ेंगी, P की वैल्यू बढ़ेंगे का सब्सट्रैक्शन कम हो जाएगा, ये वैल्यू बढ़ रहा है ऑब्वियसली, इस साइड का P का वैल्यू बढ़ रहा है, P का वैल्यू बढ़ गया तो ऑब्वियसली CFAC की वैल्यू बढ़ेगी। तो मोर विल बी द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन T2G सेट, दैट कॉम्प्लेक्स विल बी मोर स्टेबल, ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा, CFAC की वैल्यू आप लोग को ज्यादा मिलेगी। ये सीधी सीधी बात, स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स की बात बताना, स्प्लिटिंग ऑफ, मैं समझ रहा है ना मैं क्या बता रहा हूँ आप लोगों को? फुल फोकस होना पड़ेगा यहाँ पे। हाँ, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? तो हेलो, समझ रहा है सर। just Yes, reply sir. in the chat box, all of you just reply in the chat box, clear है कि नहीं, clear और not। अगर पूछना है तो पूछना भी है, क्योंकि ये मतलब मैं धीरे धीरे बताऊँ, आगे पढ़ेंगे और तो और क्लियर होते जाएगा सब कुछ। प्रॉब्लम से सॉल्व करेंगे हम लोग, प्रॉब्लम से भी पता चलेगा आप लोगों को। तो बेसिकली जस्ट चैट बॉक्स में लिखते जाओ आप लोग, जब भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा फिर साथ में सबके साथ अनम्यूट करके नहीं होगा। ओके, तो अभी देखो इसी चीज को हम लोग लेके आते हैं कॉम्प्लेक्स के तरफ, जिससे हम लोग 2-3 चीजें, बहुत सारी चीजें हम लोगों को पता चलने वाली है। समझ लो स्टेबिलिटी की बात पता चलेगी। अब इलेक्ट्रॉन फिलिंग विलिंग बहुत इंटरेस्टिंग है आप लोगों को कि COF6 3- में और COCN6 3- में, चलो भाई इलेक्ट्रॉन फिल करो, डायग्राम निकाल के क्रिस्टल फील्ड थ्योरी की। तो वो फिल करना मतलब सेम ही इलेक्ट्रॉन होते ना, लिख ही लेता हूँ ना कॉम्प्लेक्स। अब एग्जांपल लेते हैं हम लोग, इंटरेस्टिंग है। अभी ध्यान दो, हमारे पास पूरा एग्जांपल बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और ये जो टर्म मैंने अभी भी एक्सप्लेन नहीं की है, ये जब एग्जांपल समझाऊंगा मैं आप लोग को, तो आप लोग को ये समझ में आने वाली है एनपी टर्म क्यों लिखते हैं, किस लिए लिखते हैं, इसका इंपॉर्टेंट क्या है करके। ठीक है, ये मैं अभी आपको सिर्फ ये चीजें बताई मैंने अभी। बट इक्वेशन पूरा कब होगा? जब ये टर्म भी लिखे होगे आप इक्वेशन पे। तो इस टर्म का मीनिंग क्या है वही बात, कैपिटल पी है हुआ, और ये इधर का जो पी लिखा वो स्मॉल पी है, ये स्मॉल पी था। ठीक है, ओके। सो हम लोग बात करते हैं, एग्जांपल लेते एक, वही जो एग्जांपल मैंने लिख के दिया था, इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। COF6 3- और यहाँ पे COCN6 3-। इंटरेस्टिंग क्या है इसमें, कोबाल्ट की दोनों कॉम्प्लेक्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट है कोबाल्ट के ऑक्सीडेशन स्टेट सेम है। कोबाल्ट इन अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, हियर आल्सो कोबाल्ट इन अ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो हम लोग डायरेक्टली, अब मैं डायरेक्टली इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूँ। कोबाल्ट +3 स्टेट में 3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एरागोन 3d6 लिखते हैं हम लोग। और यहाँ पे भी कोबाल्ट +3 स्टेट में है, और यहाँ पे भी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगा एरागोन 3d6। अब इंटरेस्टिंग देखो क्या है, दोनों जगह पे 6 ही इलेक्ट्रॉन्स है। ओके, सो हम लोग नॉर्मली जब डायग्राम देखेंगे तो नॉन डीजेनरेट स्टेट में, सेम एनर्जी स्टेट में एक ही जगह पे इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे 6 के 6 ऑर्बिटल में, पहले सिंगली फिलिंग करो बाद में एक पेयर करो। बट बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, CFT की वजह से पता चलता है कि एक कॉम्प्लेक्स की स्टेबिलिटी, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है तो भाई सेम स्टेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं होता। स्टेबिलिटी दोनों की अलग अलग होती है, और दोनों में 6 ही इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन तो सेम ही जगह होगा सर, तो कलर भी सेम होना चाहिए नहीं। बट मैंने बताया था आप लोगों को, कल ही बताया था, कल सॉरी लास्ट क्लास में बताया था कि ये होता है ग्रीन कलर का, और ये जो कॉम्प्लेक्स होता है ये होता है येलो कलर का।
येलो ग्रीन कलर का, मैंने कलर से पेन के कलर से भी लिख दिया वहां पे, मतलब आपको ध्यान में कलर अट्रैक्ट करते हैं ना आप लोगों को। ओके, हम लोग बहुत ही एक्चुअली वी आर वेरी मच लकी कि वी कैन सी द कलर्स। भेड़ बैल बकरी को कलर नहीं दिखते, हमको कलर इसलिए दिखते हैं कि रेटिनल नाम का कंपाउंड हमारे आंखों के अंदर, रेटिना बोलते हैं ना, दैट इज कॉल्ड रेटिनल अल्डिहाइड। अल मींस होता है अल्डिहाइड, पढ़ लेना उसके बारे में। रेटिनल नाम का कंपाउंड हमारे आंखों के अंदर होता है और इट इज अ हाईली कॉन्जुगेटेड कंपाउंड। आई थिंक बोरकर सर ने पढ़ाया होगा आप लोगों को। जितना ज्यादा कॉन्जुगेशन बढ़ता है ना मॉलिक्यूल, कॉन्जुगेशन मतलब व्हाट इज द कॉन्जुगेशन, व्हाट इज द कॉन्जुगेशन, एनीवन? डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड मतलब ही होता है क्या? नहीं, अल्टरनेट डबल बॉन्ड, Different. सिंगल बॉन्ड, डबल, अल्टरनेट सिंगल, जसे Alternate. बेन्झिन मध्ये असते का नाही, सिंगल डबल, तर लक्षात ठेवायचं एकच गोष्ट की जेवढे जास्त कॉन्जुगेशन वाढेल, समजा बेन्झिन मध्ये 3च असतात डबल बॉन्ड, 6, 9, 12, 15, 18, जेवढे जास्त डबल बॉन्ड वाढतात ना कॉन्जुगेशन मध्ये, अल्टरनेट सिंगल, तेवढा मॉलिक्यूल मध्ये कलर येण्याचे चान्सेस असते, कलर्ड प्रॉपर्टी, आणि डार्क कलर येण्याचे चान्सेस असते। इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन ऑन द एब्जॉर्प्शन वेवलेंथ, ऐसा एक टॉपिक है यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो पढ़ाया होगा सर ने। मैंने एक्चुअली जो पीपीटी आप लोगों को पढ़ाया ना सर ने, बोरकर सर ने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से पढ़ाया होगा ना आप लोगों को लास्ट टाइम। यस सर। वो पावर पॉइंट Yes, sir. प्रेजेंटेशन मेरा ही पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन मैंने बनाया, मैं यूविजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाता था, तो अभी बाकी दूसरी चीजें पढ़ाता, वो अभी चेंज होते रहता है जो भी है। तो वो प्रेजेंटेशन मैंने बनाया था, बहुत ही अच्छे से बनाया था और डिटेल में लिखा उस प्रेजेंटेशन के अंदर, बहुत टाइम लगा था बनाने के लिए। मैंने बोला आप काय को मेहनत लेते, मैंने बनाया दे दिया सर को। तो उसमें आप लोग को इफेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन, तो जसं जसं अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड वाढतो तसं तसं कलर प्रॉपर्टी, तो ये कलर प्रॉपर्टी भी है कि सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होने के बाद भी दोनों अलग अलग कलर शो कर रहे हैं आप लोगों के। तो ये सब चीजें अब डायग्राम के हिसाब से हम लोग आगे आगे बढ़ते हैं। आर यू रेडी टू लर्न अबाउट दी COF63- COCN63- और नॉट? आर यू रेडी? क्या क्या पढ़ने वाले बताएं हम लोग इसके अंदर। एक तो कलर क्यों ऐसा होता है, कौन ज्यादा स्टेबल है, T2G में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं COCN6 में और COF6 में, सभी दोनों में अगर सेम सेम इलेक्ट्रॉन फिलिंग हुआ, 6 इलेक्ट्रॉन है ना, आणि कोणता हाय स्पिन, कोणता लो स्पिन, कोणता डायमॅग्नेटिक, कोणता पॅरामॅग्नेटिक, इंटरेस्टिंग आहे डायग्राम जी आता काढणार आहे मी, आणि हे डायग्राम एग्जाम मध्ये म्हणजे एग्जाम मध्ये विचारते तुम्हाला, ठीक है। सो फुल फोकस हो जाओ। 2-3 प्रॉपर्टी, कलर प्रॉपर्टी, उसके बाद स्टेबिलिटी की बात करते हैं, स्टेबिलिटी कौन स्टेबल है, कौन लेस स्टेबल, कौन मोर स्टेबल है। उसके बाद स्पिन स्टेट में इसको बोलते हैं हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, इसको बोलते हैं लो स्पिन। ये कॉम्प्लेक्स जो है ये पैरामैग्नेटिक है और ये है डायमैग्नेटिक। और जब एग्जाम में आपको क्रिस्टल फ्री स्टेबलाइजेशन एनर्जी कैलकुलेशन का भी क्वेश्चन पूछा जाता है, IIT जाम के भी एग्जाम में पूछते हैं, CSR का प्रिपरेशन करोगे नेट का तो आगे भी पूछेंगे, हमारे भी कॉलेज के एग्जाम में भी पूछेंगे, ठीक है। ओके, स्पिन स्टेट, हाई स्पिन, लो स्पिन, पैरामैग्नेटिक, स्टेबिलिटी, डायग्राम कैसा रहेगा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी का, वो सब देखेंगे। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मैं ड्रॉ करने वाला हूँ, हाँ, पहले नॉन डिजेनरेट एनर्जी लेवल्स ड्रॉ करने वाला हूँ, ठीक है। एक ऑर्बिटल, दूसरा, तीसरा, चौथा और लास्ट 5, 6 इलेक्ट्रॉन दोनों कॉम्प्लेक्स में फिल करने हैं। आवाज येता है क्लियर माझा? Yes, Yes, sir. Yes, sir. कैसे फिल करेंगे, पहले सिंगली और फिर बाद में पेयरिंग। ओके, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन मैंने, दिस इज द डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बिफोर इंटरैक्टिंग विद द लिगैंड। ओके, अब दोनों कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल है, ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग हमने देखी है। लिगैंड के साथ जब इंटरेक्शन होगा फ्लोरीन का, सबसे पहले हम लोग फ्लोरीन की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली d² - y² और dz² ऑर्बिटल ऊपर जाएंगे और dxy dy dzx ऑक्टाहेड्रल है, मींस अलोंग द एक्सिस आता है, और d² - y² dz, वो सब बताया मैंने, चलो बार बार एक्सप्लेन नहीं करता, फिर से वही, ठीक है। सो हम लोग स्प्लिटिंग ऑफ ऑर्बिटल बताते हैं जो हाई एनर्जी पे जाएंगे। कौन से ऑर्बिटल रहेंगे जो हाई एनर्जी पे जाएंगे, कौन से रहेंगे? EG ऑर्बिटल। कौन ऑर्बिटल, कौन से? EG सेट है, EG ऑर्बिटल नहीं, EG सेट। सेट में कौन से? dx²
ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड डी जेड स्क्वायर। चलो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। हाई एनर्जी लो एनर्जी पे जो जाने वाले ऑर्बिटल वो है कौन से? DXY DYZ DZX. हा तुम्हाला मी पाठांतर यासाठी करून गेलो, हा क्वेश्चन एमसीक्यू मध्ये सुद्धा विचारू शकते ना। अरे हो, द ऑर्बिटल विच लिफ्टेड टू द हायर एनर्जी इन द ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स, कौन से लिफ्ट होते हैं भाई? तो वो ऐसा क्वेश्चन पूछ भी सकता है ना आप लोगों को। DXY DYZ DZX, ओके, ये बैरे सेंटर है 0। ठीक है, देखो आज होगा तो अच्छी बात है, ध्यान दो फुल, क्योंकि ये डायग्राम को अच्छा खासा 10 मिनट और अच्छे खासे लगेंगे। ठीक है, सिमिलरली मैं थोड़ा सा ये डायग्राम जो ड्रॉ करूंगा, ये दूसरे कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं हम लोग, जो राइट हैंड साइड में जो कॉम्प्लेक्स है आप लोग का, वो कॉम्प्लेक्स में थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट ड्रॉ करता हूँ। डिफरेंट मींस ऑर्बिटल तो सेम ही रहेंगे, बट जो एनर्जी गैप है ना वो थोड़ा सी ज्यादा ड्रॉ करूंगा, बड़ी लो। सो सेम ऑर्बिटल मेरे पास है जो हाई एनर्जी पे जाएंगे, दोनों ऑक्टाहेड्रल है, तो ऑक्टाहेड्रल में ऊपर जाने वाला वही है डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और जो लोअर एनर्जी पे जो ऑर्बिटल्स है वो वही है डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स, डी एक्स वाई डी वाई जेड। अब देखो एक पहले क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, इलेक्ट्रॉन मैंने फिल नहीं किया अभी तक, आगे बहुत सारी चीजें बतानी इस डायग्राम पे, पर मैं क्या बताने वाला उसकी तरफ ध्यान दो। ठीक है, फुल फोकस हो, जो चीज बताने वाला उसके तरफ हो कि नहीं हो, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. फुल अपने मतलब जो भी म्हणजे कानामध्ये हेडफोन आणि सगळं एकदम फुल फोकस राहा, मी काय सांगणार आहे ते गोष्ट लक्षात ठेवा। देखो मैं नीचे भी उस चीज को एक्सप्लेन करता हूँ, मेटल है, ठीक है, लिगैंड अप्रोच हो रहा है मेटल की तरफ, ठीक है, ठीक है, और आपके पास समझ लो मैग्नेट्स की बात करता हूँ मैं, नॉर्थ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, यू नो दैट नॉर्थ पोल क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। तो समझ लो मैंने ये डिस्टेंस से दो नॉर्थ पोल रखे हैं, ओके, तो फील्ड में आने के थे, तो जिसकी वजह से जो रिपल्शन है कम एक्सपीरियंस करे, बचपन में भी खेले हुए सब चीजें आप लोग, और जब ये एकदम बहुत ही क्लोज में लाते हो एक दूसरे के, तो धड़ से एकदम रिपेल्ड करता है। ओके, आप लोग खेले हो गए बचपन में, हम लोग कैसा करते, स्पीकर को फोड़ देते थे और दो मैग्नेट के टुकड़े कर देते थे, कभी चिपक जाता था, और कभी एक मैग्नेट सामने रखते थे, दूसरा उसके पीछे रखते थे, और नॉर्थ पोल जैसे फेस होते हैं, तो एक मैग्नेट आगे सर को तो दूसरा आगे सरकता था। किया है क्या ऐसा आप लोगों ने कभी? Yes, sir. क्या होगा ना, तो कैसा है, और फिर एकदम पास में जो रिपेल्ड करने वाली जो चीजें है ना, पोर्ट एकदम दूसरे के बहुत ही क्लोज लाते तो थर्ड से रिपेल्ड हो जाता था, और जब दूर रहते तो उतना ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस नहीं करता था। यही चीज है, यहाँ पे ध्यान दो, अभी क्या बताने वाला हूँ। क्या होता है, समझ लो कि बॉन्डिंग की जब बात करते हैं, मेटल और लिगैंड की जब बॉन्डिंग की बात करते हैं, लिगैंड मेटल की तरफ स्ट्रांगली जाना और धीरे धीरे मेटल की तरफ अट्रैक्ट होना। धीरे धीरे अट्रैक्ट होना मतलब क्लोज नहीं जाना, जो स्ट्रांगली अट्रैक्ट होता है ना मेटल की तरफ, वो मेटल के बहुत क्लोज जाता है, और लिगैंड अगर मेटल के बहुत क्लोज है, तो जो ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन जो है डी के और लिगैंड के जो इलेक्ट्रॉन है, इसमें रिपल्शन ज्यादा होगा कि कम होना चाहिए, बताओ। मैंने क्या बोला उसके तरफ ध्यान देना है, ठीक है। जब लिगैंड मेटल के बहुत पास में आएगा, एकदम पास में आ जाएगा लिगैंड आ गया पॉजिटिव, कुछ तो भी मेटल और लिगैंड के बीच में अच्छा खासा बॉन्ड बन सकता है, जिसकी वजह से लिगैंड मेटल के बहुत पास में आ गया, समझ लो। अब जिसके वजह से लिगैंड मेटल के बहुत पास है, तो मेटल के ऑर्बिटल के भी पास में आ गया ऑर्बिटल के पास में, अगर मेटल के पास है तो ऑर्बिटल में क्या प्रेजेंट है आप लोग के, इलेक्ट्रॉन, और लिगैंड के भी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। तो क्लोज अगर है मेटल के लिगैंड, तो इलेक्ट्रॉन रिपल्शन मोर होना चाहिए कि लेस होना चाहिए, हाई और लो? मोर होना चाहिए, हाई होना चाहिए, ओके, स्ट्रांगली रिपेल्ड होना चाहिए, और जितना ज्यादा स्ट्रांगली रिपल्शन होगा उतना ज्यादा हाई एनर्जी पे जाने के चांसेस है डी स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर, और उतनी ही ज्यादा लो एनर्जी पे जाएंगे डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स। अब देखो क्या चीज बताने वाला हूं मैं, मेटल के साथ जब लिगैंड बॉन्ड फॉर्म करता है, सेम कॉम्प्लेक्स सेम मेटल एटम, सेम ऑक्सीडेशन स्टेट,
same number of electron in the d orbital, but ligand is changed. In one complex fluorine, in another complex cyanide. फ्लोरीन लिगैंड जो है वो वीक बॉन्ड फॉर्म करता है, मतलब उतना ज्यादा पास में नहीं आता कोबाल्ट के एज कंपेयर टू द साइनाइड जो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है कोबाल्ट के साथ, तो उतना पास रहता है कोबाल्ट के। तो जितना ज्यादा कोबाल्ट के पास या मेटल के पास लिगैंड रहेगा उतना ज्यादा रिपल्शन ज्यादा एक्सपीरियंस करने के चांसेस है, और जितना ज्यादा रिपल्शन एक्सपीरियंस करेगा उतना ज्यादा हाई एनर्जी पे dx2 - y2 dz2 जाएंगे, और उतनी ही लो एनर्जी पे dxy dyz dzx जाएंगे। तो एनर्जी गैप जो स्प्लिटिंग है डेल्टा ओ, ध्यान दो मैं क्या बताने वाला हूं, डेल्टा ओ इस कॉम्प्लेक्स में और डेल्टा ओ इस कॉम्प्लेक्स में। सो सीधी सी बात है कि लिगैंड जितना क्लोज मेटल के पास आएगा उतना ज्यादा एक्सपीरियंस होगा, उतना ज्यादा क्रिस्टल की स्प्लिटिंग होगी रिपल्शन ज्यादा होने की वजह से, और जितना ज्यादा दूर रहा मेटल से उतना कम रिपल्शन रहेगा। ऑब्वियसली अनइक्वल रिपल्शन तो है, वो तो है, बट फैक्टर दूसरा बता रहा हूँ, और उतना ही कम स्प्लिटिंग होने के चांसेस है। मैं क्या बता रहा हूँ समझ में आ रहा है ना? यस सर। यस सर। हाँ, तो कोबाल्ट और साइनाइड मेरा क्वेश्चन आप लोग के लिए रहेगा, जिसका आंसर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी नहीं बताती। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सिर्फ यही बताती है कि कोबाल्ट और साइनाइड बहुत पास में रहते हैं, जिस स्ट्रॉन्ग फील्ड द साइनाइड इज, आपने पढ़ा है ना वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड, सुना है कि नहीं सुना? Yes, sir. वीक फील्ड लिगैंड एंड स्ट्रॉन्ग फील्ड। वीक फील्ड लिगैंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड वर्ड ही इसके वजह से वहां पे आ गया है कि इट क्रिएट अ स्ट्रॉन्ग फील्ड, दैट्स व्हाई स्ट्रॉन्ग रिपल्शन एंड देयर इज ए high energy gap between T2G and EG set, and weak field, it create a weak field, weak repulsion, and there is a less energy gap between the T2G and EG set. तो कोई इसका आंसर बता सकता है क्या? This is the out of syllabus question, okay, but this is a very curious question. Why cyanide forms stronger bond with the cobalt as compared to the fluorine? Anyone? बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, पहले ये बताओ, चलो ठीक है वो छोड़ दो, पहले ये बताओ, ये समझा ना एनर्जी गैप इसमें क्यों ज्यादा और इसमें कम क्यों आ गया? क्योंकि मैंने ये चीज एक्सप्लेन किया आप लोगों के लिए, जितना पास में रहेगा ना दो चीजें उतना ज्यादा रिपल्शन आता है, और उतनी ज्यादा लिफ्टिंग ऑफ एनर्जी और लोअरिंग ऑफ एनर्जी होगी, तो ज्यादा एनर्जी गैप और कम एनर्जी गैप। ठीक है, तो इसके बाद में भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूँ। चलो कोई टेंशन नहीं है, मैं आजच संपलं नाही, उद्याचा क्लास मिस देणार आहे सॅटर्डेचा, डोंट वरी अबाउट इट, ये कंप्लीट करेंगे ना तब जाके मजा आएंगे इसमें। हाँ बोलो सर्व। बोला, अरे कोई तो बोल रहा था ना अभी। हेलो, आवाज येते का रे माझा? तो मेरा आवाज आ रहा है क्या सब लोगों को? यस सर। हाँ, तो मुझे ये बताना है कि why cobalt और cyanide form stronger bond with the cobalt as compared to the fluorine. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड का मतलब आपने स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पढ़ी होगी ना, स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज करके ऐसा कुछ तो भी आता है, वो भी लिख लो यहाँ पे। मतलब आयोडीन, ब्रोमीन, उसके बाद आइसोसाइनाइड, क्लोरीन, फ्लोरीन, ऐसे ऐसे करते 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 अमोनिया, इथिलीन डायमीन, NO2- और स्ट्रॉन्गर साइनाइड माइनस, और सबसे स्ट्रॉन्गर कार्बन मोनोऑक्साइड। ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड्स है, ये वीक फील्ड लिगैंड्स है। दिस इज द वीक फील्ड लिगैंड एंड दिस इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मतलब समझ लेना कि मेटल के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करते हैं, बहुत क्लोज रहते हैं मेटल के कंपेयर टू दिस वन। हाँ बोलो आता। और कोई क्लास के अंदर बता सकता है? रानी दुबे बता सकते इसका आंसर क्यों करता होगा? ज्यादा स्टेबल होगा क्योंकि पेयरिंग स्टेबल तो ऑब्वियसली वही है ना, ज्यादा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो स्टेबिलिटी की बात तो बाद में आएगी, वो तो मैं समझाऊंगा आपको क्रिस्टल फ्री स्प्लिटिंग में स्टेबिलिटी क्यों स्टेबल होता है। तो मैं बोला स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्यों फॉर्म करता होगा, मींस अट्रैक्शन क्यों स्ट्रॉन्ग है साइनाइड और कोबाल्ट में एज कंपेयर टू द फ्लोरीन एंड कोबाल्ट। बोथ हैव ए सिंगल नेगेटिव, साइनाइड के ऊपर एक ही नेगेटिव होता है और फ्लोरीन के ऊपर एक ही नेगेटिव चार्ज होता है ना, तो दो ही इलेक्ट्रॉन लेके आते हैं, समझ लो, एक फ्लोरीन एटम और एक साइनाइड, तभी भी साइनाइड स्ट्रॉन्ग करता है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन। हाँ बोलो बोलो बोलो।
Session is open for the discussion. Anyone can participate. Shruti आएगा? वैभव? Yes, sir. हाँ बोलो. So maybe cyanide is a strong nucleophile. वही तो बोल रहा हूँ ना, तो क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बोला, तो क्यों स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल? इंटरेस्टिंग है. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग. एक्चुअली दिस इज नॉट एक्सप्लेन, दिस इज नॉट द कमेंट इज नॉट गिवन बाय द सीएफटी. ओके, सीएफटी ओनली से दिस इज द सीएफटी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और उसके वजह से स्प्लिटिंग ज्यादा, ऑब्वियसली ज्यादा पास में है मेटल लिगैंड, तो स्प्लिटिंग ज्यादा. अच्छे से एक्सप्लेन किया सीएफटी ने, बट थोड़ा सा शॉर्ट कमिंग है. दिस इज वेल एक्सप्लेन बाय द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी. हां, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग होना चाहिए. दैट्स अ वेरी क्यूरियस वन. ओके, बोलो, और कोई बोल सकता है? क्यों करता होगा? सर, हाँ, ड्यू टू कार्बन नाइट्रोजन में ट्रिपल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है इसलिए. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन ट्रिपल बॉन्ड में होती है? नहीं, ये भी आंसर नहीं है. बॉन्ड फॉर्म देखो, बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कार्बन दो नाइट्रोजन. इलेक्ट्रॉन चाहिए. बॉन्ड फॉर्म करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए. वो दो इलेक्ट्रॉन साइनाइड भी दे रहा है और फ्लोरीन भी दे रहा है. रिपल्शन कंसेप्ट कब आता है? ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं, रिपल्शन डी ऑर्बिटल में, तो डी ऑर्बिटल में तो दोनों मेटल सेम होने की वजह से सेम ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना. हाँ, ज्यादा इलेक्ट्रॉन ऑब्वियसली लिगैंड में रहेंगे तो करने के चांसेस है, बट वो भी आंसर नहीं है. इंटरेस्टिंग आंसर है उसके पीछे, बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है. आई थिंक आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है सेमेस्टर 3 या 4 में. मैंने नहीं पढ़ाया, बट ये था आपको सिलेबस में. ये चीज इंटरेस्टिंग चीज थी. ठीक है, ढूंढ सकते क्या? कोशिश कर सकते क्या ढूंढने की? Sir, all electron and lower energy state पे ऑल इलेक्ट्रॉन lower energy state पे हो गया. हाँ, तो वो तो होते हैं. वो स्टेबिलिटी लोअर एनर्जी में इसलिए होते हैं रानी, क्योंकि ये लुक एट दिस, ये एनर्जी गैप बहुत ज्यादा रहती है. स्प्लिटेड एनर्जी गैप है ना, तो ये एनर्जी गैप ज्यादा रहती है साइनाइड में. वो मैं बताऊंगा ना आगे, डोंट वरी. ये ज्यादा क्यों रहती है मैंने बताया. क्यों स्प्लिट होता है ज्यादा? क्योंकि साइनाइड कोबाल्ट के बहुत पास में रहता है एज कंपेयर टू द फ्लोरीन टू द कोबाल्ट. मतलब साइनाइड और कोबाल्ट के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, जिसकी वजह से स्प्लिटिंग होती है, और उसकी वजह से लोअर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन ज्यादा आते हैं. वो बात अलग है, स्प्लिटिंग के बाद की बात है. बट स्प्लिटिंग के पहले वो पास में क्यों रहते, वो पूछा मैंने. आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन टू यू. और कोई? हाँ, Ligand के भी electron होते हैं और cyanide के. हाँ, तो वही तो बोल रहा हूँ ना. ढूंढो. इतना इजी नहीं है, इतना इजीली नहीं मिलेगा. ढूंढ सकते क्या? कोशिश कर सकते क्या सब लोग? यस और नो? जस्ट रिप्लाई इन द Yes, चैट sir. बॉक्स. Yes, sir. रिप्लाई इन द Yes, sir. चैट बॉक्स. देखो, वो पास में होने के बाद जो रिपल्शन की वजह से ये स्प्लिट हो गया, तो मैंने अभी बताया, जितना पास में रहेंगे ना लिगैंड, उतना ज्यादा d² - y² dz² ऊपर जाएगा. स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड में वैसे ही होते हैं, वो सब पास में रहते मेटल के बहुत ही क्लोज. तो क्लोज रहने की वजह से बॉन्डिंग चाहिए ना, होती है ना बॉन्डिंग. अपने मम्मी पापा के साथ आपकी अच्छी बॉन्डिंग होती है. नेबर से ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग किसके साथ होती है? मम्मी पापा के साथ. इसलिए बहुत क्लोज रहते हो ना आपके पेरेंट्स के. रहते ना, उतनी ज्यादा मार भी पड़ती है पेरेंट्स से. जितना ज्यादा क्लोज रहेंगे उतना ज्यादा इंटरेक्शन रहेगा. तो लिगैंड मेटल के साथ में ज्यादा इंटरेक्ट होगा, रिपल्शन ज्यादा होगा. कब? जब लिगैंड और मेटल बहुत पास में रहेंगे. तो ये पास में मम्मी पापा से हम मम्मी पापा से ही आए, इसके वजह से हम उनके पास में है ज्यादा, बाकी लोगों से ज्यादा पास में उनके पास में. तो रीजन है ना उसके पीछे क्यों पास में रहते मम्मी पापा के. तो मैंने वही क्वेश्चन पूछा कि लिगैंड मेटल के पास, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड मेटल के बहुत ही क्लोज रहते हैं, बिकॉज दे फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद द मेटल. व्हाई दे फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड? क्या स्पेशल है साइनाइड में एज कंपेयर टू द फ्लोरीन? आई आस्क्ड दैट क्वेश्चन. और वो तो ऑब्वियसली बाद में बात है कि ज्यादा पास होने की वजह से डी ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स और लिगैंड के इलेक्ट्रॉन बहुत क्लोज है, नॉर्थ नॉर्थ बहुत ही पास में, तो ज्यादा रिपल्शन होने की वजह से भी ये स्प्लिटिंग जो है ये ज्यादा होती है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड के इसमें एज कंपेयर टू द वीक फील्ड. और बाद में जब इलेक्ट्रॉन फिलिंग मैं कल एक्सप्लेन करके बताऊंगा आप लोगों को. अब 6 इलेक्ट्रॉन COF6 के कंडीशन में कैसे फिल किए जाते हैं और COCN6 के इसमें कैसे फिल किए जाते हैं और क्यों होते हैं, मैं कल बताऊंगा. ठीक है? ठीक है क्या? Yes, sir. ढूंढ के लाओगे क्वेश्चन का आंसर? कोशिश करोगे क्या? बताऊंगा मैं, वैसे ऐसा कुछ टेंशन मत लो, बट जस्ट कोशिश करो. ओके? कल का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आधा ही बचा है डिस्कशन. ये डायग्राम तो हम लोग आगे लेके
Just reply in the chat box. Clear or not clear? So लिंक सेंड कर देता हूँ, आप लोग इसको आपका रोल कॉल लगा लीजिए आप लोग। मैंने लिंक सेंड कर दिया। ओके, गुड बाय, टेक केयर। कल का क्लास भी मैं लेने वाला हूँ। कल इस डायग्राम को कंप्लीट करेंगे और मैं प्रॉब्लम सॉल्व करवाऊंगा आपसे कल, ठीक है? ओके, गुड बाय, टेक केयर।